السلام علیکم دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہترین ناول کا نام ہے احساس کے دریچوں پر بائی ثنا ظفر۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی پہلی ایپیسوڈ بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ۔ بی بی جی، چھوٹے صاحب آپ کا کئی بار پوچھ چکے ہیں اور انہوں نے کہا تھا جیسے ہی آپ آئیں فوراً ان کے پاس پہنچیں۔ وہ ابھی آفس میں داخل ہی ہوئی کہ رحمت نے پیغام دیا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو وہ پورے 10 منٹ لیٹ تھی اور پھر 2 دن کی چھٹی کرنے کے بعد اس کے عتاب کا نشانہ بننا تو لازمی تھا۔ وہ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں آئی کم ان سر؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جی آئیے، تشریف لائیے۔ خشمگین نگاہوں، طنزیہ جملے اور لہجے نے رہی سہی جان ہی نکال دی تھی۔ جی تو محترمہ تنوینہ حیدر صاحبہ، کتنی دنوں بعد تشریف لائی ہیں آپ؟ اس کے جھکے سر کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی طنزیہ لہجے میں سوال کیا گیا۔ 2 دن بعد سر، پست آواز میں جواب آیا۔ اور آپ کی گھڑی میں کیا وقت ہوا ہے؟ اس نے پوچھا تو اس نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر خفیف سی ہو کر بازو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ او سر، میں تو گھر سے جلدی ہی نکلی تھی لیکن ٹریفک کی وجہ سے، اس نے دھیرے سے کہنا چاہا لیکن بات درمیان میں ہی اچک لی گئی۔ ٹریفک میرا مسئلہ نہیں ہے مس تنوینہ حیدر، میرا مسئلہ صرف وقت کی پابندی اور کام ہے۔ وہ اپنی سیٹ کے پیچھے کھڑا ہو کر دہاڑا۔ اور یہ چھٹیاں کس سے پوچھ کر کی تھیں آپ نے؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ٹیبل کے پاس آن رکا۔ منصور صاحب سے، آواز ہلکی سی تھی۔ منصور صاحب سے؟ آپ اسسٹنٹ میری ہیں یا منصور صاحب کی؟ اس کا غصہ کسی طور پر کم نہ ہو رہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ جواب دو۔ وہ اچانک ہی اس کے بالکل قریب چلا آیا تو ایک دم گھبرا گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ اسے کچل کر رکھ دے گا۔ مس تنوینہ حیدر علی خان، وہ واپس پلٹا، یہ آفس ہے، کوئی پارک یا ہوٹل نہیں کہ آپ کا جب جی چاہے اٹھ کر چل دیں اور جب چاہے چھٹی منائیں۔ اس نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ آپ کا مقصد تو صرف پیسے کا حصول ہے، کام کریں یا نہ کریں اس سے آپ کو کیا غرق، کیونکہ تنخواہ تو آپ کو ہر مہینے وقت پر مل جاتی ہے، تو پھر کام کرنے کی کیا ضرورت؟ عیش کریں۔ اس کے کہنے پر وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ یہ سراسر الزام تھا اس پر۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی لیکن وہ پھر بھی بڑے ضبط سے کھڑی تھی۔ اس الزام پر اس کی آنکھیں جھلملا گئیں اور سر جھکا کر آنکھوں کو جھپک جھپک کر آنسو پیچھے دھکیلنے لگی۔ اب اس طرح کھڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جائیے اور جا کر کام کیجیے اپنا۔ اجازت ملنے پر وہ اپنے وجود کو گھسیٹتی ہوئی باہر آئی۔ ہال میں نظر دوڑائی تو ابھی 1-2 ورکر ہی آئے تھے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کا سارا غصہ ہمیشہ مجھ پر ہی نکلتا ہے، جیسے میں ہی لیٹ آتی ہوں، باقی سب تو ان کے چہیتے ہیں، ایک میں ہی ان کی زرخرید غلام ہوں۔ وہ سوچتے ہوئے شاید اپنے کام کی نوعیت کو بھول گئی تھی۔ ہاں، سن جو لیتی ہوں سب کچھ، اس لیے معلوم ہے نا، جو مرضی کہہ لو، جس طرح مرضی ذلیل کر دو، یہ کہیں نہیں جائے گی، مجبور جو ٹھہری۔ وہ فائلوں کو ادھر ادھر کرتے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اور یہ تانیہ اور تنویر بھی ابھی تک نہیں آئے اور مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ معلوم ہے نا، انہیں کچھ کہا بھی تو جاب کو ٹھوکر مار کر چلے جائیں گے، کیونکہ وہ مجبور نہیں ہے۔ وہ فائل کھولے کچھ لکھنا چاہتی تھی لیکن آنسوؤں کے پردے راہ میں بار بار حائل ہو رہے تھے، اور جب بالکل ہی ضبط نہ کر سکی تو ٹیبل پر سر رکھے روتی چلی گئی۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ تانیہ اس کے سر پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو چہرہ آنسوؤں سے تر اور آنکھیں سرخ تھیں۔ ہیں، تم تو رو رہی ہو، کیوں؟ وہ جواب دینے کی بجائے چہرہ اور آنکھیں صاف کرنے لگی اور وہ جیسے خود ہی سب سمجھ گئی۔ اچھا، آج پھر ڈانٹ پڑی ہے؟ اس نے اپنے ٹیبل پر بیگ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جواباً وہ سوں سوں کرتی رہی۔ بھئی 2 دن بعد آئی ہو، ڈوز تو ملنا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ 10 منٹ لیٹ بھی؟ اس نے ناک رگڑتے ہوئے معصومیت سے خود ہی بتایا تو تانیہ کھلکھلا کر ہنس دی۔
यार इतना इंतज़ार कराओगी तो डांट तो पड़ेगी ना। बको मत, उसे गुस्सा आ गया। ठीक कह रही हूँ मैं, उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। क्यों डरती हो तुम? इसीलिए तो वो शेर हो जाता है, बस डट जाओ। ये सिर्फ गीदड़ भभकियाँ हैं। जिस तरह रात के अंधेरे में गीदड़ अपने अंदर का खौफ छुपाने के लिए चिल्लाता है ना, तो उनका भी यही हाल है। वो उसे समझा रही थी। रोने के बाद अंदर का गुब्बारा कुछ कम हुआ तो वो काम की तरफ मुतवज्जा हुई, और फिर सारा दिन उसे सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिली कि 2 दिन का काम जमा भी उसे आज ही करना था। मसरूफियत की वजह से उसे वक्त गुजरने का एहसास भी न हुआ। चौंकी तो वो इस वक्त जब वो उसके सर पर आन खड़ा हुआ। क्या अब रात भी यहीं गुजारने का इरादा है? लहजा काटदार था। उसने चौंक कर सर उठाया और ना समझने वाले अंदाज में उसे देखा। छुट्टी हुए 1 घंटा हो चुका है मोहतरमा। ओह, वो एकदम परेशान हो गई और फ़ौरन रेस्ट वॉच पर वक्त देखा तो खड़ी हो गई। उसे याद आया अभी कुछ देर पहले तानिया ने उसे मुखातिब किया था। लो जी, हमारे तो फयान्सी आ गए, हम तो चलें। तुम कब निकलोगी आखिर? हाँ, बस थोड़ा काम रह गया है, अभी उठ रही हूँ, अपने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया, और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि ये सब 1 घंटा पहले की बात थी। उसने जल्दी जल्दी चीज़ें समेटीं, चादर ओढ़ कर कुछ फाइलें भी उठा लीं और तेज़ी से ऑफिस से बाहर आई तो वो गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाल रहा था। वो रोड पर पहुंची तो ट्रैफिक के बेहंगम शोर ने उसका इस्तकबाल किया। सड़कों पर बेपनाह रश था, कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई न देती थी। उसे सड़क क्रॉस करना थी, लेकिन रश इतना था कि 10 मिनट यही सोचते हुए गुजर गया कि कहाँ से गुजरे आखिर, और बमुश्किल तमाम उसने ये पहाड़ सर कर लिया। फिर वैन के इंतज़ार में खड़े खड़े उसकी टांगें सिल हो गईं। हर 2 मिनट बाद आने वाली वैगनों में तिल धरने की भी जगह न थी। उसने चकराते सर के साथ गहरी होती शाम को देखा तो घबराहट तारी हो गई। आखिर खुदा खुदा करके एक वैन की फ्रंट सीट पर पहले से मौजूद 2 सवारियों के साथ जगह मिल गई। उसने बैठते ही चकराते सर को थाम कर बेकाबू होते हवास को काबू में करने की नाकाम कोशिश की, और फिर उसे कुछ पता न चला कि 1 घंटे का सफ़र किस तरह तमाम हुआ। उतरो बीबी, कंडक्टर की आवाज़ पर उसने बमुश्किल आंखें खोल कर न समझने वाले अंदाज में देखा। आपका स्टॉप आ गया है जी। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और अपनी तमाम हिम्मतें जमा करती हुई बाहर आई। उसे लगा कि अगर वो चंद सेकंड भी खड़ी रही तो गिर जाएगी। वो सड़क के साथ ही खड़े जूस वाले के बेंच पर बैठ गई। 1 गिलास जूस पीने के बाद उसको कुछ होश ठिकाने आए तो पैसे देते हुए अंधेरे में डूबे आसमान की तरफ देखा, जहां अब कुछ सितारे टिमटिमा रहे थे। वो गहरी सांस लेते हुए उठी और ट्रैफिक के शोर से निजात पाने के लिए तेज़ी से कदम बढ़ा दिए। उसे अब 15 मिनट का फासला पैदल ही तय करना था। वो अंदर ही अंदर खुद को घर पहुंचकर पेश आने वाली सूरत हाल के लिए तैयार कर रही थी। न जाने जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर क्यों बन गई थी। आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को चादर के पल्लू से साफ किया। हस्बे तवक्का दरवाज़ा ममानी ने खोला। अस्सलामु अलैकुम, और वो जवाब देने की बजाय बोली, आ गई शहजादी साहबा। लहजे में तंज और हिकारत कूट कूट कर भरी थी। खुद तो ऐश करती फिरती हो, कुछ इस पालने वाली का भी ख्याल है जिसने पाल पोष कर इस काबिल बना दिया। एहसान फरामोश। और सुनी अनसुनी करती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उनकी तल्ख बातों के जवाब में वो खामोश ही रहती थी, लिहाजा इस वक्त भी खामोशी से ऊपर आ गई। अम्मा उसे देखते ही बोली, आ गई मेरी बच्ची। लहजे में इंतज़ार की तड़प वाज़ेह थी। अस्सलामु अलैकुम अम्मा। उसने फाइलें और बैग उन्हें थमाते हुए कहा। आज इतनी देर कर दी? वो जवाब देने के फ़ौरन बाद पूछने लगी। बस अम्मा। वो इतना कहकर सामने बिछी चारपाइयों में से एक पर ढह गई। अम्मा चीज़ें अंदर रखकर वापस आईं तो उसकी जर्द होती रंगत देखकर हौल गईं और जल्दी से दूध में एनर्जाइल मिला कर ले आईं। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मा, बिना आंखें खोले जवाब दिया। लो ये पी लो। नहीं अम्मा, मेरा कुछ भी पीने को जी नहीं चाह रहा।
पी ले बेटा, तबीयत संभल जाएगी। मैंने वैन से उतरते हुए ही जूस पी लिया था। अम्मा ने गहरी सांस लेकर ग्लास वहीं एक साइड पर रख दिया। मैं तो आज तुम्हारे जाने के बाद से ही बड़ी फिक्रमंद थी। 2 दिन बुखार में जलती रही हो, ऊपर से इतनी गर्मी और फिर इतनी मेहनत और आने जाने की थकन अलहदा। मना भी किया था कि मत जाओ, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो, और फिर इतनी देर से भी आई। बुरे बुरे ख्यालों से तो मेरा दिल ही हौला जा रहा था। अम्मा की बात पर हल्की सी तलख मुस्कुराहट उसके होंठों पर आकर दम तोड़ गई कि सुबह वाला वाक़या भूला नहीं था उसे। अम्मा 2 दिन बाद ही गई हूँ तो इतना काम था कि सारा दिन सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिली। और एमडी साहब की डांट अलग, वो सीधी हो बैठी। दोपहर का खाना भी खाया या नहीं? अम्मा के पूछने पर उसे याद आया कि तानिया के कहने के बावजूद कुछ गुस्से और कुछ मसरूफियत की वजह से वो लंच गोल कर गई थी, और अब उसे अपनी इतनी ज़्यादा कमज़ोरी की वजह समझ आई थी कि सुबह भी देर हो जाने की वजह से सिर्फ़ 1 कप चाय पीकर निकल गई थी। सारा दिन भूखे पेट, इतनी मेहनत, तो फिर हवास कहाँ काबू रहते हैं। लेकिन अम्मा के ख्याल से उसने झूठ बोला। जी अम्मा, खा लिया था। लेकिन वो माँ थीं, जान गई। अपना ख्याल रखा करो मेरी बच्ची, क्या हालत हो गई है तेरी। उन्होंने उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा। फूल जैसा चेहरा कमला कुमला कर रह गया है। मत किया कर इतनी मेहनत, क्यों इतनी जान मारती है। अम्मा के लहजे में उसके लिए फ़िक्रमंदी थी। तो फिर क्या करूं अम्मा, क्या भूखे बैठे रहें। उसने माँ के हाथ थाम लिए। आहा, अम्मा ने तवेल आह भरी। तेरा बाप जिंदा होता तो तुझे इतने धक्के ना खाने पड़ते। कौन सा बाप? उसने शरारत से मुस्कुरा कर पूछा तो अम्मा उसे देख कर रह गई। तनवीना, मेरी बात मान ले, न खा हम लोगों की खातिर इतने धक्के। तू ज़रमीना के पास चली जा, वो तुझे शहज़ादियों की तरह रखेगी। बस करे अम्मा, अपने आराम की खातिर आप लोगों को छोड़ दो और इस औरत के पास चली जाऊं जिसने मुझे कभी बेटी कहकर पुकारा भी नहीं। और आप जिन्होंने मुझे यतीमी के दौर में सहारा दिया, पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि मैं इस मुआशरे में सर उठाकर चलने के काबिल हुई हूं, और अब ऐसे कड़े वक्त में आपको छोड़कर चली जाऊं। अम्मा प्लीज़, आप ऐसी बातें मत किया करें जिससे मेरा दिल दुखे। मुझे लगता है आप बच्चों के साथ भी ऐसी बातें करती हैं। अभी कल ही जैन मुझसे कह रहा था कि आपा, हमने आप पर बहुत बोझ डाल दिया है। ठीक ही तो कहता है। उनके कहने पर वो दुख से उनकी तरफ देखने लगी। अम्मा, क्या मैं आपकी कुछ भी नहीं? उसके लहजे में नमी थी। अम्मा ने तड़प कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। ऐसे ना कहो तनवीना, मेरे लिए जो तू है वो नाइमा और जैन भी नहीं, और इस हकीकत से तू भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। तो फिर क्यों परेशान है मम्मी? आप बस कुछ अरसे की बात है, सब ठीक हो जाएगा। फिर क्यों परेशान है मम्मी? आप बस कुछ अरसे की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। और एक बात मेरी याद रखें, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और आप वादा करें आइंदा आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। मेरा कौन सा दिल करता है कि तू कहीं जाए। बस मैं तो तेरे ही ख्याल से कह रही हूँ कि अब तेरी नौकरी की नहीं, शादी की उम्र है। लीजिए, यहाँ रोटी के लाले पड़े हैं और उन्हें शादी की पड़ी है। अम्मा, मुकर्ररा वक्त से पहले कुछ नहीं हो सकता, आप परेशान ना हुआ करें। और बस अब जल्दी से उठ जाएं, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ मैं इतने में इन दोनों को बुलाती हूँ। कहाँ हैं दोनों? नाइमा को गुड़िया बुला कर ले गई थी और जैन कहीं अपने दोस्तों के साथ होगा। अम्मा कहती हुई सीढ़ियाँ उतर गईं और वो सोचती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मोहम्मद साबिर का ताल्लुक़ मुतवस्सत तबके के एक घराने से था। बच्चे खुदा ने 3 ही दिए थे, जिसकी वजह से कम आमदनी में भी सफ़ेद पोशी का भरम कायम था।
वो दो बड़े बच्चों बेटा और बेटी के फ़र्ज से तो सबकदोश हो चुके थे, जबकि छोटी बेटी ज़रमीना अभी कॉलेज जाती थी। कॉलेज आते जाते अपनी सादगी और मासूम सूरत के बायस एक रईसजादे के मन को भा गई और ऐसी भाई कि वो रिश्ता भिजवाने पर मजबूर हो गया। इतने ऊंचे घराने से रिश्ता आने पर सारे ख़ानदान में खलबली सी मच गई और एक वो थी जो आगे पढ़ना चाहती थी। इस अचानक अफ़दात पर घबरा गई कि न जाने अब कौन कौन से अफसाने उसकी जात से मंसूब किए जाएंगे। वो लोग इतने बड़े घर में बेटी ब्याहने से घबरा रहे थे, लिहाजा सोच विचार के बहाने छानबीन के लिए वक्त मांगा गया। लड़के का बाप शुजाअत अली खान शक्ल और सूरत से तो खासा पुरअकार और पुरखुलूस लगता था, लेकिन माँ के चेहरे पर रौनियत और तकब्बुर वाजी थे। साफ लगता था कि ज़बरदस्ती लाई गई है। लेकिन फिर शुजाअत अली खान की बार बार आमद और इसरार यकीन दहानी पर उन्हें हाँ कहना ही पड़ा और फिर चट मंगनी पट ब्याह के मिसाल शादी आई। शादी की पहली रात ही ज़रमीना पर यह इंसाफ हुआ था कि हैदर अली खान ने उसे कॉलेज आते जाते देखा तो अपना दिल उन्हीं राहों पर खो बैठा। वो वाकई उसे बहुत चाहता था, लेकिन उसके साथ ही उसने ये भी बताया कि शादी घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। सिर्फ पापा ऐसे हैं जो मेरी खुशी में खुश हैं। देखो ज़रमीना, तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने सगे और खूनी रिश्तों को नाराज़ किया है। मामा मेरी शादी अपनी इकलौती भतीजी से करना चाहती थी जो कि करोड़ों की जायदाद की तनहा वारिस थी। भाईजान को मेरा इंतखाब इसलिए पसंद नहीं आया कि वो समझते हैं कि मैंने तरक्की की राहें अपने लिए बंद कर ली हैं। दोनों बहनें इसलिए नाखुश हैं कि जो मामा कह रही हैं वही ठीक है। कुछ अरसा पहले तक मेरा भी यही हाल था, लेकिन तुम्हें देखते ही दिल बागी हो गया। वो तो शुक्र है पापा ने मेरा साथ दिया, और अगर न भी देते तो मैं तुम्हें ज़रूर हासिल करता, क्योंकि तुम वो वाहिद लड़की हो जिसने मेरे दिल की दुनिया को तह व बाला किया। वो उसका हाथ अपने हाथों में लिए बोल रहा था और वो हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। फिर गुज़रते वक्त ने ये सच साबित कर दिखाया कि हैदर उसे कितना चाहता है। वो उसकी मोहब्बतें पाकर बेपनाह खुश थी, लेकिन सास ननंदों का रवैया उसे दुखी कर जाता, और उसकी इस परेशानी को महसूस करते हुए हैदर ने अलहदा घर बनवाने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि जानता था कि माँ बहनों के रवैये नहीं बदल सकते और वो उसे परेशान नहीं देख सकता था। बस कुछ अरसा इंतज़ार कर लो, फिर मैं तुम्हें एक ऐसे महल में लेकर जाऊंगा जहां मोहब्बतें ही मोहब्बतें होंगी और हम दोनों के सिवा तीसरा कोई न होगा। वो उसे जी भर कर तसल्ली देता, जबकि वो मुजीद हरासा हो जाती। नहीं हैदर, मामा तो पहले ही मुझसे खायफ हैं, इस तरह और बदजन हो जाएंगी कि उसका बेटा उनकी नज़रों से भी दूर कर दिया मैंने। आप परेशान न हो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी हो ज़री, इसलिए ऐसा सोचती हो, जबकि मैं अपने घर वालों को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। और वो जो कि अपनी सास ननंदों का दिल जीतना चाहती थी, हैदर की गैर मौजूदगी में हर वक्त आते जाते उस पर तंज की जाती और उसे ऐसे अलक़ाबात से नवाजा जाता कि उसके तमाम इरादे चकनाचूर हो जाते और फिर वो भाग कर पापा के कमरे में पनाह लेती। वो वाकई बहुत सफ़ीक बाप थे, अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंद रहने वाले, और आजकल वो अपनी बड़ी बेटी सहीरा के लिए परेशान थे। वो तलाक लेकर वापस आ गई थी। उसकी फ़िक्र न तो उसकी माँ को थी और न खुद उसे। शादी को अभी 1 साल ही गुजरा तो सास नंदों ने वावेला मचा दिया कि अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। हालांकि वो जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती थी वहाँ शादी के 5 साल तक बच्चे को एक ख़तरा तस्वुर किया जाता था, लेकिन उन्हें तो उसे तंग करने का एक नया बहाना हाथ आ गया था। थोड़े ही अरसे बाद अल्लाह ताला ने ये खुशी भी दे दी, तो उसे लगा कि अब कोई गम उसके पास न भटकेगा। इन दोनों के साथ साथ पापा भी बहुत खुश थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, हैदर की बेचैनी में इजाफ़ा हो रहा था। उसने तो पहले ही कमरे में खिलौनों और कपड़ों का ढेर लगा दिया था। वो अपने जीते जागते खिलौने का बड़े जोश व खरूश से इस्तकबाल करना चाहता था। ज़रमीना, हमारा बच्चा हॉस्पिटल के बाद सबसे पहला कदम अपने नए घर में रखेगा।
میں اسے یہاں ان نفرتوں کا سامنا کرنے کے لیے نہیں لاؤں گا، کیونکہ میرا بچہ صرف اور صرف محبتوں کے لیے پیدا ہوگا، اور میں دنیا کا کوئی غم، کوئی پریشانی اس کے قریب نہ آنے دوں گا۔ وہ اکثر و بیشتر زرمینہ سے کہتا تھا، لیکن تقدیر سے بڑا ستمگر کوئی نہیں۔ انسان قسمت کے آگے بڑا بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسے گیٹ پر سی آف کر آئی، اور اب کمرے کی حالت درست کرتی وہ گنگناتے ہوئے ایک ایک چیز کو بڑے پیار سے سنبھال کر رکھ رہی تھی کہ شجاعت علی خان بڑی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، زرمینہ سنو، جلدی کرو، میرے ساتھ آؤ۔ وہ یہ کہتے ہی دوبارہ نکل گئے، اور وہ ہراساں سی ان کے پیچھے ہی نکلتی چلی گئی۔ ہسپتال کے اندر پہنچنے سے پہلے ہی ڈاکٹرز حیدر کی ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس میں رکھ چکے تھے۔ نہ جانے وہ کون ظالم تھا جو کہ اتنا بڑا ٹرالر آنکھیں بند کر کے ڈرائیو کر رہا تھا کہ اسے سامنے سے آتی حیدر کی گاڑی نظر نہ آئی تھی۔ حیدر کی آنکھیں کیا بند ہوئیں، اس کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ جب جنازہ اٹھا وہ اس وقت بھی بے ہوش تھی۔ اس جوان موت پر یہاں موجود ہر فرد کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ مما کی حالت بھی ابتر تھی، وہ رہ رہ کر اسے کوس رہی تھی۔ ڈائن کھا گئی میرے بچے کو، برباد کر دیا مجھے، ہائے میرا بچہ۔ وہ سینے پر ہاتھ مار کر روئیں اور پھر ایک دم ہی اس پر جھپٹ پڑیں۔ بس کر، بند کر یہ ڈرامہ بازی، میرا گھر لوٹ لیا، اب اور کیا چاہیے تجھے؟ خالدہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہوش کے ناخن لو۔ شجاعت علی خان نے بمشکل اسے چھڑایا تو وہ ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگیں، دفع کر دو اسے یہاں سے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، نکالو اسے گھر سے باہر۔ انہوں نے بے ہوش پڑی زرمینہ کو ٹھوکر ماری۔ خالدہ ہوش میں آؤ۔ شجاعت علی خان انہیں زبردستی پکڑ کر دوسری طرف لے گئے۔ زرمینہ کے گھر والے بھی یہاں موجود تھے۔ آخر وہ اپنی بیٹی کو اس طرح تذلیل ہوتے کب تک برداشت کرتے، اور ویسے بھی یہاں اب باقی کیا بچا تھا؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا۔ 2 سال کی بیاہتا بیوہ ہو چکی تھی، سسرال میں اس کا کوئی غمخسار نہ تھا، تو ایسی صورتحال میں اسے کیسے یہاں رہنے دیتے؟ وہ لوگ اسے سوم کے بعد لے گئے۔ تم نے بہت برا کیا ہے خالدہ، بہت برا۔ شجاعت علی خان کو بے حد افسوس تھا۔ کیا برا کیا ہے میں نے؟ اس نے کون سا نیکی کی تھی ہمارے ساتھ، میرا بیٹا مجھ سے چھین کر؟ خالدہ بیگم چلائیں تو شجاعت علی خان نے تعصیف سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کا نہیں تو کم از کم آنے والے بچے کا ہی خیال کیا ہوتا جو تمہارے بیٹے کی نشانی ہے۔ کون سا بچہ؟ ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ جس نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے بیٹے کو نگل لیا۔ جاہلوں جیسی باتیں مت کرو۔ ہاں میں جاہل ہوں، بیوقوف ہوں، لیکن اب وہ اس گھر میں نہیں آئے گی۔ وہ چلائیں۔ اب اس کا یہاں رکھا ہی کیا ہے جو وہ یہاں آئے گی؟ شجاعت علی صاحب نے انتہائی کرب سے کہا، اور خاموشی سے اندر بڑھ گئے۔ وہ آبلہ پا سارے گھر میں پھرتی، لیکن بے قرار دل کو کسی طرح قرار نہ تھا۔ رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو گئی تھیں۔ اس کی شسکیاں اس کے اندر ہی دم توڑ جاتیں۔ پہلے وہ جن چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، اب انہیں سینے سے لگائے گھنٹوں روتی۔ اماں بابا اس کا غم اپنے دلوں پر محسوس کرتے، لیکن تقدیر کے آگے بے بس تھے۔ بابا تو اس غم کو سہ نہ سکے اور جلد ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور اماں زندہ درگور ہو گئیں۔ تقدیر نے ان کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا! وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا، لیکن اسے لگتا کہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ اسے ہر چیز سے اداسی اور ویرانی ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ گھنٹوں ایک نقطے پر نظریں جمائے خلاؤں میں گھورتی رہتی، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جس کا انتظار تھا۔ کمزوری کے باعث نارمل کیس بھی بگڑ گیا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر اس نے ایک صحت مند اور گول مٹول سی بچی کو جنم دیا۔ ہوش میں آتے ہی بچی کو دیکھنے کی خواہش کی تو اماں نے اسے اس کی گود میں دے دیا تھا۔
वो उसे देखते ही बे अख्तियार हो गई और सीने से भींच कर फूट फूट कर रो दी। वहाँ मौजूद हर फर्द की आंखें पुरनूम हो गईं। वो अभी अपनी बच्ची को ठीक तरह से देख भी न पाई थी कि उसकी बड़ी बहन, जिनकी शादी को 8 साल हो गए थे मगर गोद अभी तक सूनी थी, अपनी झोली फैलाए चली आई और उनका मुतालबा उसका दिल बंद करने के लिए काफ़ी था। नहीं आपा, नहीं, मैं हैदर की निशानी को आपके हवाले कर दूं, ये कभी नहीं हो सकता। उसने बच्ची को बाहों के हिसार में लेकर सीने से लगा लिया और आपा बेबसी से अम्मा की तरफ देखने लगी। आपा ठीक कह रही हैं ज़रमीना, ये भाभी थी। आप ये सब इसलिए कह रही हैं कि कहीं मैं और मेरी बच्ची आप पर बोझ न बन जाए, लेकिन मैं उसको किसी पर बोझ नहीं बनने दूंगा, किसी पर बोझ नहीं बनने दूंगी। तुम हमें गलत मत समझो ज़रमीना। भाईजान ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया। हम तुम्हारे ही भले के लिए कह रहे हैं बेटा। बेटा होता तो और बात थी, लेकिन ये बेटी है, तुम अकेली उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। क्या आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे? उसने इल्तिजाइया नज़रों से भाई की तरफ देखा। हम तुम्हारी बेहतरी का सोच रहे हैं बेटा। अब तुम खुद सोचो कि आज मुंह मोड़ने वाले कल अगर उसके दावेदार बनकर आ गए तो तुम क्या करोगी? उन्होंने कहा तो वो बेबसी से उनकी तरफ देखने लगी। ज़रमीना मेरी बहन, मैं तेरी बच्ची को सगी औलाद से भी ज़्यादा चाहूँगी। उसे तेरी अमानत समझ कर पालूँगी। देख तो, तू अभी जवान है, तेरी शादी होगी तो तुझे और बहुत बच्चे होंगे, और मैं। आपा की आवाज़ रूंध गई। देख, मैं तेरे दर पर सवाली बनकर आई हूँ, मुझे नामुराद न लौटा। उन्होंने वाकई अपना दामन फैला दिया, लेकिन वो ऐसा दिल कहाँ से लाती कि अपनी गोद सुनसान करके उनका दामन भर देती। देखो ज़रमीना, बहन बेटियों को हमेशा बाप के साए की ज़रूरत होती है, और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी को बाप की शफ़क़त और भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दूँगा। उसे भी सगे बाप की कमी महसूस न होगी। जमाल भाई ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया और फिर आपा और जमाल भाई की मन्नतों और सबके समझाने बुझाने पर उसने अपनी गोद खाली करके आपा का दामन भर दिया। अपने हैदर की निशानी को दूसरों के हवाले कर दिया और हैदर के घर वालों को पैगाम भिजवाया कि बच्ची मुर्दा पैदा हुई थी। चलो खश कम जहाँ पाक, दादी ने सुनकर कहा। लेकिन जब सजात अली खान उससे मिलने आए तो उनसे कुछ भी न छुपा सकी। उन्होंने भी उसकी कुर्बानी को सराहा था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके घर में बच्ची के लिए भी जगह नहीं है। इन हालात में ज़रमीना का फ़ैसला दुरुस्त था। उसके दर्द से तो सब आशना थे। वो तन्हा बैठी अपने खाली दामन को तकती रहती। कुदरत ने उसके साथ कितना संगीन मजाक किया था। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? वो खुद से सवाल करती और रोने लगती। लेकिन आखिर कब तक वो खुद फर खामोशी की हालत में रह सकती थी? अम्मा की खातिर उसे खुद को संभालना पड़ा कि अब उसकी ज़िंदगी का वो आखिरी सहारा थी। उनकी दिन ब दिन गिरती हुई सेहत एक और ख़तरे की निशानदेही कर रही थी, और फिर उसने खुद को मसरूफ़ रखने के लिए दोबारा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तनवीना जब से इस घर में आई थी, एकदम से सब कुछ बदल गया था। जिस आंगन में पहले सन्नाटे गूंजते थे, अब वहाँ उसकी चहकारें गूंजती। दोनों मियाँ बीवी के हाथ तो एक खिलौना आ गया था, हर वक्त उसके ही आगे पीछे रहते। उसके जरा से रोने पर दोनों दौड़े चले आते, जरा सी चोट पर दोनों बेचैन हो जाते। उनकी खुशियाँ और गम तो अब तनवीना से ही मंसूब थीं। ज़रमीना तकरीबन रोज़ाना ही आ जाती और उसे लपटाए एक टक तके जाती। उसके मुस्कुराने पर मुस्कुराती, मुंह बिसोरने पर मुंह बिसोरती। ज़रमीना, देखा तूने, बिल्कुल तेरे जैसी है। मुझे याद है जब तू इतनी सी थी तो बिल्कुल ऐसी थी, आपा कहती तो वो उसे अपने साथ लपटा लेती।
तन्वीना ने पाँव पाँव चलना सीख लिया था। अब वो अपने छोटे छोटे कदम उठाकर चलती तो सब उस पर 100 जान से फिदा हो जाते। ज़रमीना की शादी के लिए सब ज़ोर दे रहे थे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। हत्ता कि हैदर के वालिद सजात अली खान ने भी यही मशवरा दिया था। अम्मा बीमार हुई तो उनका ये मुतालबा ज़ोर पकड़ गया। अम्मा, मैं शादी करके पहले कौन सा सुख देखे हैं जो फिर देखूंगी? वो उनकी बात सुनकर रो पड़ी। नहीं बेटी, मुकद्दर सदा एक सा नहीं रहता। मेरी ज़िंदगी में तुझे कोई साहिबान मिल जाए तो मैं भी सुख की मौत मर सकूंगी। कब तक भाई की चौखट पर बैठी रहेगी? आज जो भावज अच्छी है, लेकिन कल को अगर मुंह मोड़ ले तो कहाँ जाएगी? सदा वक्त एक सा नहीं रहता बेटी। अपनों के पराये होने में देर नहीं लगती। और फिर अम्मा के समझाने और इसरार पर सजात अली खान के तवस्सुत से उसकी शादी हो गई। तन्वीना इस वक्त 4 बरस की थी और स्कूल जाने लगी थी। और फिर उसने अपनी बेटी की खुशियों के खातिर अपने सीने पर सब्र की एक भारी सिल रख ली और पलट कर कभी तन्वीना की खबर न ली। तन्वीना 7 बरस की हुई तो खुदा ने मुअज्जज़ा दिखाया। ज़रीना और जमाल की खुशियों की कोई इंतहा न थी जब शादी के 15 साल बाद उन्हें औलाद की नवीद मिली। और जब समीना ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया तो जमाल ने तन्वीना को दोनों हाथों में उठाकर घुमा दिया और चटाचट प्यार करने लगा। उसके ही कदम मुबारक थे जो अल्लाह ताला ने उनकी भी सुन ली। होना तो ये चाहिए था कि सगी औलाद के आने पर उसकी तरफ से तवज्जो कुछ कम हो जाती, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अब तन्वीना उन्हें पहले से भी ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। और फिर नाइमा के 3 साल बाद ज़ैन भी इस दुनिया में आ गया तो हर तरफ खुशियों के सादियाने बजाए गए। दोनों मियाँ बीवी ने तो तन्वीना की बलाएं लेते न थकते थे। वक्त गुज़रता रहा। जैसे ही उसने सने शऊर में कदम रखा, उस पर तमाम हकीकतें आश्कार कर दी गईं कि कुल अगर उसे किसी और जरिए से मालूम हुआ जाए तो वो दिलबख्शता न हो। उसे जब से मालूम हुआ कि वो उनकी अपनी औलाद नहीं तो वो उनकी इतनी मोहब्बतों के बावजूद एकदम से खामोश रहने लगी थी। हर वक्त चहकने वाली तन्वीना ने चुप साध ली थी। अपनी हकीकी माँ को देखने की फितरती ख्वाहिश उसके अंदर परवान चढ़ने लगी, लेकिन इस वक्त उसका सारा शौक़ धरा का धरा रह गया जब इस पुरअकार और खूबसूरत सी औरत ने रस्मी से अंदाज में उसके गाल थपथपाए और अम्मा से बातों में मशगूल हो गई तो वो आँखों में ढेरों आंसू लिए बाहर सहन में आ बैठी। उससे ज़्यादा प्यार तो मुझे राह चलते लोग कर लेते थे कि देखो कितनी प्यारी बच्ची है। उसने आंसू साफ करते हुए सोचा और फिर उसके दिल से सब तमाम शकूक व शुबहात धुल गए। नहीं, सिर्फ अम्मा ही मेरी माँ और बाबा ही मेरे बाप हैं। और ये फ़ैसला करते ही वो बिल्कुल हल्की फुल्की सी हो गई और सब कुछ भूल भाल कर पहले जैसी मसरूफ़ रहने लगी। हाँ, अलबत्ता एक सफ़ीक हस्ती थी जो कि शुरू से ही उससे मिलने के लिए हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा आती थी। उनके मुताल्लिक अम्मा ने बताया था कि वो तुम्हारे दादा जान हैं और जब भी आते उसके साथ साथ नाइमा और ज़ैन के लिए भी ढेरों कपड़े और खिलौने लाते। वो अक्सर ही उनका इंतज़ार करती कि वो उसे चाहते भी तो बहुत थे। वो जब आते वो घंटों उनसे बातें करती रहती और फिर जब वो तमाम हकीकतों से वाकिफ़ हुई तो उन्होंने भी उसे सब कुछ सच सच बता दिया। और फिर वो माँ के साथ साथ दधियाल से भी ऐसी बददिल हुई कि कभी उनसे मिलने की ख्वाहिश दिल में बेदार न हुई। फिर सजात अली को वफ़ात के बाद ये दधियाल से राब्ता हमेशा के लिए उसका ख़त्म हो गया। वो खुशियों के झूलने में झूलती परवान चढ़ रही थी। बाबा की आमदनी बहुत ज़्यादा तो न थी, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे। घर चूँकि सरकारी था इसलिए अब उनके दिल में अपना घर बनाने की ख्वाहिश थी, लेकिन अभी इतनी गुंजाइश न थी कि वो अपनी इस ख्वाहिश को कोई अमली जामा पहना सकते। खुशियों भरा ये घराना अपनी खुशियों में मगन था कि न जाने क्या हुआ, बाबा अचानक बीमार रहने लगे। हल्की हल्की खांसी तो थी
हल्की हल्की खांसी तो उन्हें अक्सर ही रहती थी। डॉक्टर के इसरार पर कभी कभी दवाई ले आते थे, लेकिन ज़्यादा तवज्जो कभी न देते थे। लेकिन जब मर्ज ज़्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर ने मुख्तलिफ टेस्ट करवाने का मशवरा दिया, जिसे वो टाल गए कि पहले ही दवाइयों पर इतना खर्च हो रहा था तो इन टेस्टों का खर्चा ही बहुत था। लेकिन मर्ज था कि दिन ब दिन बढ़ता ही जाता था। और फिर वो दिन भी आ गया जब उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और रिपोर्टें बता रही थी कि टीबी का मर्ज अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था। और फिर सारी जमा पूंजी खर्च हो गई, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। तनवीना इन दिनों बीएससी के फाइनल ईयर में थी और एग्ज़ाम में सिर्फ 6 माह रह गए थे, लेकिन उसका ज़्यादा वक्त बाबा के पास ही गुजरता था। वो दिन रात उनकी तीमारदारी में लगी रहती और फिर एक दिन सुबह वो हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ गए। कोई कयामत थी जो उन पर बीत गई थी। बाबा क्या गए जैसे मसाइब ने उनका घर देख लिया। जमा पूंजी तो पहले ही खर्च हो चुकी थी। घर सरकारी था जो अब खाली करना था। अब कहाँ जाएंगे, ये सवालिया निशान था जो सबके जहनों में गर्दिश करता। और फिर मामू ने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन उन्हें सर छुपाने को दे दिया, जिसके सिर्फ 2 कमरे थे। मामू की भी आमदनी इतनी न थी कि वो अपने बच्चों के साथ साथ उनकी किफ़ालत भी करते। लिहाजा पेट पालने के लिए उन्हें खुद ही कुछ करना था। सिलाई कढ़ाई का काम तो अम्मा पहले भी किया करती थी, सो अब भी करने लगी, लेकिन उससे ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी न होती थीं। नाइमा, जिसने 8वीं के पेपर्स दिए थे, और जैन जो 5वीं का तालिब इल्म था, दोनों की पढ़ाई छूट गई और वो खुद भी कॉलेज नहीं जा रही थी। दिन बहुत बुरे हालात में गुजरने लगे। मामू कभी कभार थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते थे। आपा, क्या तनवीना कुछ नहीं कर सकती? सारा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। ये ममानी थी। मेरे साथ हाथ तो बटाती है, कुछ ना कुछ तो करती ही रहती है। इस थोड़ा बहुत करने से क्या होगा, उस पर जिम्मेदारी डालो। अभी बच्ची है भाभी, और वैसे भी अभी उसके इम्तिहानात होने वाले हैं। आय हाय, बच्ची है। उसकी उम्र की लड़कियां पूरा पूरा घर संभाले हुए हैं और अभी बच्ची है। ममानी बोलती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। बस अब मुझ में मुझीद बर्दाश्त नहीं होता अम्मा। वो एकदम ही माँ के सामने खड़ी हो गई तो अम्मा हैरान से उसे देखने लगी। बस मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब मैं नौकरी करूँगी। नौकरी? पर तेरे इम्तिहानों के लिए भी पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। उसके लहजे में भी आप तंज ओद आया था। अम्मा सोचते हुए उसकी तरफ देखने लगी। नहीं तनवीना, मैं तेरा मुस्तकबल इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। तेरे बाबा को बहुत शौक़ था तुझे बहुत सा पढ़ाने का। देख, तू ऐसा कर, तू ज़रमीना के पास चली जा, वो तेरी पढ़ाई का खर्चा उठा सकती है। अम्मा ने रुक रुक कर कहा। अम्मा, आज तू ये बात कही है, आइंदा न कहना। वो एकदम भड़क उठी। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं जो इन हालात में आपको तन्हा छोड़ जाऊं। वो ये कहकर उठी और अंदर चली गई, लेकिन अम्मा बाज नहीं आई और वक्तन फ़ौक्तन अपनी बात दोहराती रहती और उसे समझाने की कोशिश में रहती, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। तो अम्मा को चुप होना पड़ा, वो भी उस शर्त पर कि पहले वो अपना फाइनल क्लियर करे, फिर मुलाजिमत का सोचे। लेकिन अम्मा, फ़ीस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसका बंदोबस्त हो जाएगा, तो फ़िक्र ना कर। लेकिन वो कैसे फ़िक्र ना करती? ये उसे गवारा नहीं था कि माँ उसकी खातिर किसी के आगे हाथ फैलाए। लिहाजा उसने पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन्स भी पढ़ाना शुरू कर दी। हालात की वजह से वो इस साल एक लफ्ज़ भी ना पढ़ सकी थी, इसलिए उसे सख्त मेहनत करना पड़ी। खुदा खुदा करके एग्ज़ाम से फ़ारिग हुई तो बहुत सी फ़िक्रें दामनगीर थीं। नाइमा और जैन का साल ज़ाया हो चुका था और फिर उसने जॉब की तलाश में कमर बांध ली, लेकिन जहाँ भी जाती नाकामी उसे मुंह चढ़ा रही थी। और अगर सीट होती भी तो ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता कि हमें तजुर्बेकार लेडी वर्कर चाहिए, या फिर उसे ही दफ्तरी माहौल पसंद ना आता कि बहुत से काले भेड़िए मुंह खोले हुए महसूस होते और अपनी इज्जत उसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ थी।
नौकरी की तलाश में फिरते फिरते उसकी टांगें सिल हो गई थी। कई कई घंटे वो पैदल चलती रही कि वैगनों के किराए के लिए पैसे कहाँ से लाती। कोई सिफारिश भी तो न थी जिसके जरिए वो कुछ हासिल कर सकती। जो भी करना था उसे खुद ही करना था। अचानक ही अखबार में उसे एक इश्तेहार नज़र आया। किसी कंपनी की तरफ से था जो कि अपनी नई ब्रांच खोल रही थी और उसके लिए नौजवान टैलेंट की ज़रूरत थी। तजुर्बेकारी का मुतालबा नहीं था, बल्कि लिखा था कि तजुर्बा हम आपको देंगे। उसने फ़ौरन ही एड्रेस और फ़ोन नंबर नोट कर लिया, क्योंकि इश्तिहार में ये भी उम्मीद दिलाई गई थी कि काबिल और ज़रूरतमंद ख्वातीन व हजरात को तरजीह दर ज़रूर दी जाएगी। जी बीबी, तशरीफ़ रखिए। कमरे में 2 अफराद मौजूद थे। अधेड़ उम्र आदमी उससे मुखातिब हुआ। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप ये जॉब किसी ज़रूरत के तहत करना चाहती हैं या वक्त गुजारी के लिए। उसे ये सवाल बिल्कुल फिजूल लगा, क्योंकि उसका लिबास व अंदाज़ चीख चीख कर उसकी ज़रूरतमंद होने की गवाही दे रहा था। सर, हमारे यहाँ की औरत बिना ज़रूरत घर से नहीं निकलती, और रही बात वक्त गुजारी की, तो हमारे तबके के लोग वक्त नहीं गुजारते, बल्कि वक्त उन्हें गुजारता है। उसके लहजे में एतमाद की झलक मौजूद थी। अच्छा, आप ये बताएं क्या नाम है आपका। उन्होंने अगला सवाल पूछने से पहले नाम पूछ लेना मुनासिब समझा, और साथ ही वो उसकी फ़ाइल खोल कर देखने लगे। तनवीना हैदर, उसने बताया तो वो सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में थोड़ी सी उलझन थी। वालिद का नाम? हैदर अली खान। उसके बताने पर उनकी पेशानी पर सोच की लकीरें नमूदार हुईं। दादा का नाम? उसे ये सवालात बिल्कुल गैर ज़रूरी और बचकाना से लग रहे थे, क्योंकि ये सब कुछ उसकी फ़ाइल में दर्ज था। लेकिन वो फ़ाइल देख कहाँ रहे थे, वो तो बगूर उसका जायज़ा ले रहे थे। उसने कुछ उलझे से लहजे में जवाब दिया, सजाअत अली खान। अच्छा, अब एक और पर्सनल सवाल। उन्होंने कहा तो सवालिया नज़रों से देखने लगी, जबकि उसके साथ बैठे शख्स के चेहरे पर भी उलझन और बेजारी के तासरात वाज़ेह थे। ये जॉब आप क्यों करना चाहती हैं? आपके घर वालिद? उन्होंने कसदन जुमला अधूरा छोड़ दिया। वालिद का इंतकाल हो चुका है और एक भाई है जो कि अभी बहुत छोटा है, उसने जवाब दिया। तो उन्होंने उसकी फ़ाइल पर सरसरी सी निगाह डालकर टेबल पर उसके आगे सरका दी। ठीक है बेटी, ये इदारा खोला ही आप जैसे ज़रूरतमंद लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए है। आप इत्मीनान से घर जाएं और अपॉइंटमेंट लेटर का इंतज़ार करें। थैंक यू सर, उसने फ़ाइल उठाते हुए कहा, और फिर कमरे से बाहर आ गई। और फिर उसे अपॉइंटमेंट लेटर का ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उम्मीद तो पूरी थी कि जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये तवक्को हरगिज़ न थी कि उसे इतनी बड़ी सीट दी जाएगी। वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की असिस्टेंट बना दी गई थी। एमडी के बाद ज़्यादातर अख्तियारात उसके पास होना थे। अगले दिन जब वो वहाँ पहुँचे तो कॉमन रूम में पहले से ही 5 अफराद मौजूद थे, जिनमें से लड़की सिर्फ एक ही थी। वो भी उसके साथ जाकर बैठ गई। अभी वो कमरे और माहौल का जायज़ा ही ले रही थी कि उस दिन वाले दोनों हजरात कमरे में दाखिल हुए। अस्सलामु अलैकुम, अधेड़ उम्र आदमी ने पहल की तो कमरे में मौजूद सब लोग खड़े हो गए। तशरीफ़ रखिए, मेरा ख़्याल है कि हमें पहले एक दूसरे से तारुफ़ हासिल कर लेना चाहिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेडीज़ फ़र्स्ट, उन्होंने लड़कियों की तरफ देखा। तानिया, जलील, तनवीना हैदर, सब ने बारी बारी नाम बताए तो उन्होंने अपना भी तारीफ़ कराया। मुझे मंसूर अहमद कहते हैं और ये हैं हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अरसल मंसूर, उन्होंने कहा तो उसने सर हिलाकर तायीद की। बाकी सब के साथ वो भी उसकी तरफ देखने लगी जिसकी वो असिस्टेंट बनाई गई थी। चेहरे से तो वो खासा बावसूल और रिजर्व सा इंसान लगता था। नामों से तो क्या आप फेस से ही अंदाज़ा कर चुके होंगे कि उन्हें मेरे साहबजादे होने का शर्फ हासिल है। मंसूर साहब खासे खुश इखलाक थे, उनकी बात पर सब मुस्कुरा दिए, लेकिन सिर्फ घर तक।
यहाँ ये अभी सिर्फ आप लोगों की तरह वर्कर हैं। वो संजीदा हुए, क्योंकि आप ही की तरह ये भी बिज़नेस की दुनिया में अभी नए हैं, इसलिए इस कंपनी को फ़िलहाल मैं ही मैनेज करूँगा। आप लोगों का इंतखाब चूँकि मेरिट पर हुआ है, इसलिए आपकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, जबकि अभी हमें बहुत से छोटे वर्कर्स की ज़रूरत है। कुछ तो सिलेक्ट हो चुके हैं और बाकी आप लोग लाएंगे। उन्होंने कहा तो तन्वीना के जहन में कई एक ऐसी लड़कियां आईं जिन्हें जॉब की ज़रूरत तो थी, लेकिन वो कम पढ़ी लिखी थी, और फिर वो उनको दीगर तफसीलात समझाने लगे, और इस तरह पहला दिन तो तारुफ करना, काम को समझने में गुजर गया। अगले दिन वो सब टाइम पर पहुंच गए। उसके और तानिया के लिए अलहदा कमरे में चेयर्स और टेबल सजाई गई थी। बाकी लोगों के बैठने का इंतज़ाम दरमियान वाले कमरे में था, जबकि तमाम छोटे वर्कर्स के लिए हॉल कमरे का इंतखाब किया गया था। काम शुरू होने से पहले एमडी साहब ने उनको अपने कमरे में तलब किया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी ने बिल्कुल नया काम शुरू किया है। बज़ाहिर तो ये पापा ही की कंपनी की एक ब्रांच है, लेकिन हमने अपनी कोशिशों और मेहनतों से इसे एक अलहदा मकाम देना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक अच्छे और ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना है। उसने कहा तो वो सब ने इंशाअल्लाह कहा, और उसके लिए मुझे आप लोगों का ताउन दरकार होगा। चूँकि आप सब की तरह मैं भी इस फील्ड में नया हूँ, इसलिए फ़िलहाल पापा ही उसके डायरेक्टर हैं। यूँ तो मैंने उनके साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अपने ज़ोहर आजमाने का मुझे अब मौका मिला है। इस वक्त यहाँ मौजूद सब लोग बराबर हैं। मेरा मतलब है कोई अफसर या मातहत नहीं है, बल्कि यहाँ हर एक को अपनी जगह खुद बनानी है। जो कोई जितनी मेहनत करेगा वही सीट का मुस्तहक होगा। वो उठकर अपनी चेयर के पीछे जा खड़ा हुआ और दोनों बाजू उसकी पुश्त पर रख दिए। और अगर कोई अपने काम से इंसाफ न कर सका और हमारे मुआहरे पर पूरा न उतर सका, तो यकीनन उससे वो सीट वापस ले ली जाएगी जिसके लिए उसे मुंतखब किया गया है। और ये कहते हुए उसकी नज़र बिल्कुल गैर इरादी तौर पर तनवीना हैदर पर पड़ी, क्योंकि उन सब में वो वाहिद थी जिसके लिए सीट का इंतखाब हुआ था, और वो जो उसकी तरफ देखते हुए पूरे इन्हिमाक और तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी। इस तरह अचानक उसके देखने पर पलकें झुका गईं, और शायद अरसल मंसूर के लिए यही एक कमज़ोर लम्हा था। और जहाँ तक मेरा ख़याल है, आप लोग हमें मायूस नहीं करेंगे और इस बात का एहसास दिलाएंगे कि हमने आपका इंतखाब गलत किया। उसने फ़ौरन ही खुद को संभाला। इंशाअल्लाह सर, सब ने एक साथ कहा। सो काइंड ऑफ यू एंड गुड लक। फिर जहाँ तानिया और तनवीना कंपनी के सरगर्म रकन है बनी, वहाँ बाकी लोग भी कंपनी का अहम सुतून साबित हुए। कुछ ही दिनों में उनमें 2 नई लड़कियाँ फरिया और राहिला का इजाफा हो गया। हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की तको-दो में बेहतर नताइज सामने लाने की कोशिश करता। गुजरते वक्त के साथ साथ उसने भी अपने काम में महारत हासिल कर ली थी। मंसूर साहब ने उसे बहुत गाइड किया था, लेकिन एक वो था कि जिससे अपने नातजुर्बेकार की बिना पर हमेशा डांट खाना पड़ती, और उसकी गलती को कभी माफ़ नहीं करता था। छोटी से छोटी गलती पर उसे बेइज्जत करके रख देता। शुरू में तो वो अपनी गलतियां होने के बाद शर्मिंदा सी सब कुछ सुनती रहती थी, लेकिन फिर ये जल्दी उसने खुद को इम्प्रूव कर लिया। वो अपना काम बड़ी मेहनत और ध्यानदारी से करती। मंसूर साहब हमेशा उसके काम की तारीफ़ करने, उसकी मेहनत को सराहते थे। शाबाश बेटा, आपने मुझे मायूस नहीं किया, और मुझे खुशी है कि मैंने आपका इंतखाब गलत नहीं किया था। हालांकि अरसल का ख्याल था कि एक बिल्कुल नातजुर्बेकार लड़की इस सीट के लिए मौजू नहीं है। सर, वो तो अभी भी मेरे काम से मुतमईन नहीं है। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, लेकिन ये शायद खाम ख्याली ही थी। मिस तनवीना, मेरे कमरे में तशरीफ़ लाएं, इंटरकॉम पर कहा गया। जी अच्छा सर। लेकिन वो कोई फ़ाइल देख रही थी जिसे कंप्लीट करके उसके पास ले जाना चाहती थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई, और जब वहाँ पहुँची तो सूरत हाल गैर मुतवक्का थी। मिस तनवीना, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ जो बैठा आपका इंतज़ार करता रहूँ। उसका सख्त और खुरदरा लहजा गुस्से से भरपूर था। सर, मैं ये
वो लड़खड़ा गई। शट अप, उसने कहा और हाथ में पकड़ा कागज़ उसकी तरफ उछाल दिया। ये लेटर आपने टाइप किया है? नहीं सर, तन्वीना ने कहा। वो समझते हुए अंदाज में बोली, ले जाएं उसे और अच्छी तरह चेक करके लाएं मेरे पास। सर ये फ़ाइल, उसने सहमे हुए अंदाज में पूछा। मेरे सर पे मारो उसे। शायद बहुत उलझा हुआ था इसलिए यूं कह दिया था। वो चुप खड़ी रही। उसकी समझ में ना आया कि वो चली जाए या फाइल खोलकर उसके सामने रख दे। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? सर ये फ़ाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बोली। फ़ाइल? क्या बकवास है ये? वो आग बबूला हो गया, उठकर उसके करीब आया और फाइल छीन कर मेज़ पर पटक दी। अब जाओ यहाँ से, उसने धुतकारने वाले लहजे में कहा। सर आखिर मेरा कसूर क्या है? कई दिनों से मचलता सवाल आज आखिर जुबान पर आ ही गया और वो जो पलट गया था मुड़कर दोबारा उसे घूरने लगा। मैं फिजूल सवालात सुनने का आदी नहीं हूँ, उसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। एहसास तजलील और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। आंखों में आए आंसुओं को ज़ब्त करती वो अपनी सीट पर आ गई। लगता है डोज मिली है, तानिया ने मुस्कुरा कर छेड़ा तो वो ज़ब्त के बावजूद भी रोना शुरू कर दी। कॉमन यार, बेवकूफ़, इग्नोर कर दिया करो। लेकिन वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद मंसूर साहब उनके कमरे में आ गए और मुख्तलिफ़ सवालात करने लगे जिनका जवाब तानिया ही दे रही थी। इस बात को उन्होंने बहुत जल्द नोट किया। क्या बात है बेटा, खैरियत? उन्होंने पूछा, लेकिन वो कुछ भी न बोल सकी। तन्वीना बेटा, कोई परेशानी है क्या? वो हमदर्दी से पूछ रहे थे। नो सर, कोशिश के बावजूद भी लहजे में नमी थी। कम ऑन माई चाइल्ड, बताओ क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने निहायत मोहब्बत से पूछा तो उसके रुके हुए आंसू एक बार फिर उबल पड़े। ओ सर, शायद अरसल साहब ने कुछ कहा है, उसके रोने के दौरान, तानिया ने बताया। ओहो भाई, इतनी सी बात पर रो रही हो? मैं तो आपको बहुत बहादुर समझता था। अच्छा चलो बताओ क्या कहा है अरसल ने? सर उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आता, बिला वजह ही डांटते रहते हैं। उसने नाक रगड़ते हुए मासूमियत से बताया तो वो कह लगा कर हंस दिए। बस या कुछ और भी? वो खामोश रही। अब क्या बताती कि वो उसकी कितनी तजलील करता है। ठीक है, अब मैं उसे समझा दूंगा कि वो मेरी बेटी को कुछ ना कहा करे। उन्होंने कहा तो वो उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ कि न जाने अब वो किस तरह उसे अपने इताब का निशाना बनाएगा। और फिर और फिर उसके खदशात सही साबित हुए। अगले दिन वो अपने कमरे में बुलाने की बजाय उनके कमरे में चला आया और तानिया से बातें करने लगा। वो अपने काम में इतनी मशगूल थी कि उसे खबर ही न हुई। मिस तानिया, सुना है कुछ लोगों को शिकायतें लगाने की बहुत आदत है, वो कदरे बुलंद आवाज़ में बोला तो उसने चौंक कर सर उठाया। वो उसे गुस्से से घूरने की कोशिश कर रहा था। वो लब काट कर रह गई। उससे पहले कि वो कुछ और कहता, फ़ोन की बेल ने मुतवज्जह कर लिया। सर आपका फ़ोन है, उसने धीमे लहजे में कहा। उसे मेरे कमरे में मिलाएं और आप खुद भी तशरीफ़ लाएं ज़रा। वो कहता हुआ उठकर बाहर निकल गया और वो उसकी लंबी चौड़ी पुश्त को घूर कर रह गई। अब जाओ भी या अभी और सामत बुलवाने का इरादा है? तानिया ने शरारत से कहा। आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी मंसूर साहब को सब कुछ बताने की? अरे अब उधर का गुस्सा इधर तो मत निकालो, उसने उसे कहा तो वो खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरती हुई बाहर निकल गई। जर्द होती रंगत और धड़कते दिल के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई तो वो रिसीवर रख रहा था। बैठो। वो खामोश बैठी, लब काटती और हाथों को एक दूसरे के साथ मलती रही और वो बगौर उसकी कैफियत जांचने लगा। बहुत से लम्हे खामोशी के नज़र हो गए। मैं जाऊं सर? उसे उसकी नज़रों से उलझन होने लगी तो बोल उठी। ये तो डांट खाने से भी ज़्यादा सख्त इम्तिहान था। क्यों? उसका लहजा, वो अंदाज खोया खोया था। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। मुझे काम करना है सर।
बैठ जाओ तनवीना हैदर। लेकिन वो खड़ी रही तो वो उठकर उससे थोड़े फासले पर आ खड़ा हुआ। क्या बताया था तुमने पापा को मेरे मुताल्लिक? एकदम ही अंदाज तफ्तीसी वाला हो गया था। मैंने कुछ नहीं बताया, वो तो तानिया ने कहा था। क्या? वो अभी तक अपनी निगाहें उसके चेहरे पर गाड़े हुआ था और अब उसकी टांगों में इतनी शिकस्त नहीं रही कि वो खड़ी रहती। सो दोबारा बैठ गई तो वो भी मेज़ के कोने पर टिक गया। तनवीना हैदर एक बात सच सच बताओ, उसने मशकूक लहजे में कहा और वो उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन जल्द ही नज़रें झुका लीं। आखिर तुम किस मकसद के लिए यहाँ आई हो? उसका लहजा शक से भरपूर था। वो हैरत से उसे तकने लगी। पापा को तो तुमने पहले ही दिन शीशे में उतार लिया था और अब मेरी शिकायतें लगाकर मुझे ट्रैप करना चाहती हो? उसके लहजे में हकारत ओद आई थी। इतनी तजलील, इतनी ज़िल्लत। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। सर आप। उस ज़ब्त की हदों से गुज़र रही थी। उसका बस न चलता था कि उस सामने बैठे शख्स का चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दे। वो झटके से उठी और तेज़ी से बाहर निकलती चली गई। आज उन्हें इस इदारे से वाबस्ता हुए 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका था, लेकिन उसका रवैया बदस्तूर था। कभी कभी तो उसके साथ इतना तज़हीक मेज़ सलूक करता कि उसका दिल चाहता कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चली जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी कि अब घरेलू हालात बमुश्किल काबू आए थे। नाइमा और जैन फिर से स्कूल जाने लगे थे। रोटी कपड़े की फ़िक्र कम हो गई थी। दूसरी वजह खुद मंसूर साहब थे, जो उसे बेटियों की तरह चाहते थे। यहाँ सब लोग इस बात से वाकिफ़ थे कि मंसूर साहब यूँ तो सबके साथ ही बहुत अच्छी तरह पेश आते थे, लेकिन तनवीना को खुसूसी तवज्जो व अहमियत देते थे। यही वजह थी कि दफ्तर का सारा अमला भी उसकी बेहद इज़्ज़त करता था। बस एक रईस अहमद साहब थे जिनके दिल में दुनिया भर की हसीनाओं का दर्द छुपा हुआ था। वो हर लड़की की तारीफ़ करना अपना फ़र्ज समझते थे और आजकल तो वो उसकी नज़र करम से मुंतज़िर रहते थे। आते जाते उस पर तारीफ़ी कलमात और ज़ोमाने जुमले उछालते और वो मुस्कुरा कर टाल जाती थी। महीने के आखिरी दिन थे। मंथली मीटिंग होने वाली थी और हर कोई अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ था। यूँ तो यहाँ हर वक्त ही काम होता था, लेकिन आखिरी दिनों में हर किसी के लिए एक एक मिनट कीमती होता था। यही वजह थी कि कंपनी ने इतने कम वक्त में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। अब तो मंसूर साहब बहुत कम यहाँ आते थे, ज़्यादातर सिर्फ मीटिंग्स में शिरकत करते थे। अब सारा कंट्रोल अरसल मंसूर के पास ही था। हॉल के तमाम वर्कर्स तनवीना और तानिया के मातहत थे, जबकि तनवीर बाकी स्टाफ को कवर करता था। चूँकि आज मीटिंग थी, इसलिए सब लोग जमा थे। मंसूर साहब के आते ही कार्रवाई शुरू हो गई। मोहतरम साथियों, आप लोगों ने इस कंपनी की तरक्की के लिए जिस तरह दिन रात मेहनत की है, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। आप लोगों के खुलूस को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि आपकी मोहब्बतों का मुआवज़ा आप लोगों को बहुत कम दिया गया है। ये कंपनी की मजबूरी थी, लेकिन अब मैं ये बात कहते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अब हमारी कंपनी इस काबिल है कि अपने वर्कर्स को उनकी मेहनतों का पूरा मुआवज़ा दे और इंशाअल्लाह साल के शुरू में हम तनख्वाहों का नया बजट बनाएंगे। मंसूर साहब ने अपने पुरअकार लहजे में बात करते हुए उन्हें खुशखबरी सुनाई और फिर सब ने अपने अपने काम के हवाले से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स उन्हें दिखाईं। वेल डन, बहुत खूब तनवीना बेटा, आपने तो कमाल कर दिया। इन रिपोर्ट्स में आपने जो लाया अमल तैयार किया है, ये आगे चलकर इस कंपनी को बहुत फ़ायदा देगा। बहुत खूब। मंसूर साहब दिल खोल कर तारीफ़ कर रहे थे। लो भाई अरसल, तुम बगौर इनका मुताला करो और जल्द अज जल्द इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दो। मेरे पास तो इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं यहाँ टाइम दे सकूँ। आजकल फैक्ट्री के हालात कुछ गड़बड़ हैं। बहरहाल तुम
खुश किस्मत हो कि तुम्हें इतना ज़हीन और अच्छा स्टाफ मिला है। मंसूर साहब जिन रिपोर्ट्स की इतनी तारीफ़ कर रहे थे, उसने उन पर सरसरी सी नज़र डालकर एक साइड पर रख दिया। तनवीना बेटा, आपको अगर कोई मसला हो, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। जहाँ तक भी हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा। वो इस वक्त उसके कमरे में ही बैठे थे। नो सर, कोई मसला नहीं है, उसने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, झिझकने की बात नहीं है बेटा, मैं आपको बेटी कहता ही नहीं, समझता भी हूँ। तुम बिना झिझके हर बात मुझसे शेयर कर सकती हो। ये कहते हुए उनके लहजे पर एक साया सा लहरा गया। इस तरह हो सकता है कि शायद मेरे अंदर का बोझ कुछ कम हो जाए। वो एकदम ही मलूल हो गए थे। सर, कैसा बोझ? बेटी ना होने का बोझ, बेटी ना होने का बोझ, उन्होंने मुस्कुरा कर टाला। लेकिन तुम्हें देखकर सोचता हूँ कि बेटी हो तो ऐसी। सर, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, उसने झेंपते हुए कहा तो वो कहकहा लगाकर हंस दिए। ओ सर, एक प्रॉब्लम है तो सही। वो फिर झिझक गई। सर, अगर आप पिक एंड ड्रॉप के लिए कन्वेंस का मसला हल हो जाता तो बेहतर है। तो दफ्तर की बाकी लड़कियां भी ये मुतालबा कर रही हैं सर। हाँ बिल्कुल, अभी मैं कल अरसल से कह रहा था कि दफ्तर में लड़कियां ज़्यादा हो गई हैं। अब कंपनी की तरफ से उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन तुम आम वर्कर्स के साथ वैन में नहीं जाओगी, बल्कि तुम्हारे लिए अलहदा गाड़ी होनी चाहिए। नो सर, मेरे लिए यही काफ़ी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर धक्के खाने से तो बहुत बेहतर है ना। खैर देखते हैं। ओके, मैं चलता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू अगेन। थैंक यू सर, वो भी मुस्कुरा दी। और ये मसला हल होते ही बहुत सी लड़कियाँ उसके पास शुक्रिया अदा करने के लिए आईं। उनका एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया था, लेकिन उसके लिए वाकई अलहदा से गाड़ी और ड्राइवर का बंदोबस्त कर दिया गया था। मिस तनवीरा, अब तो आपके पास लेट होने का कोई जवाज न होगा, अरसल मंसूर ने बड़े चुभते हुए अंदाज में कहा था। इंशाअल्लाह सर, अब मैं लेट नहीं होंगी। अब वो खासी पुरएतमाद हो गई थी। अब वो उसके डांटने पर न तो रोती थी और न ही परेशान होती, बल्कि अब वो उसे उसकी आदत समझकर इग्नोर कर जाती, जिससे वो चिढ़ जाता। उसे उसका ये एतमाद एक आंख न भाता था और बिला हो जा ही उससे उलझ पड़ता था। ज़िंदगी अब कुछ पुरसुकून हो गई थी। शायद उसकी वजह ये थी कि इंसान के अपने अंदर सुकून हो तो उसे हर चीज़ पुरसुकून नज़र आती है। अब वो संजीदगी से अलहदा घर लेने के मुताल्लिक सोच रही थी, जबकि अम्मा का ये मुतालबा बढ़ता जा रहा था कि अब वो शादी के लिए रज़ामंद हो जाए। लेकिन वो अभी ऐसा नहीं चाहती थी कि अभी उसे बहुत कुछ करना था, बहुत से कर्ज उतारने थे, और फिर इस वक्त तक वो शादी के मुताल्लिक सोच भी नहीं सकती थी जब तक ज़ैन किसी काबिल ना हो जाता। और अभी तो वो बमुश्किल मैट्रिक तक ही पहुंचा था, और इधर रोज़ बरोज़ ममानी का मुतालबा बढ़ता जा रहा था। वो अलहदा घर का इंतज़ाम करें, क्योंकि उन्हें बहू लाने की जल्दी थी। और अम्मा तो अब हर वक्त यही गिला करती नज़र आती थी कि भाभी, बाहर से लड़कियां देख रही हैं, क्या उन्हें घर में जवान लड़की नज़र नहीं आती? तनवीर बेटा, यस सर। अब तुम मुझे सर मत कहा करो अंकल, बल्कि पापा कहो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि अब मेरा इस दफ्तर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। सर, पापा, वो ये कहकर हंस दी। नो सर, अंकल ही ठीक है। पापा कहूँ तो अरसल साहब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो मुस्कुरा कर कह गई। चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अब सर वर नहीं चलेगा। हाँ, तो ड्राइवर बता रहा था कि वो तुम्हें स्टॉप से पिक करता है, क्योंकि गाड़ी अंदर गलियों में नहीं जा सकती। यस सर, वो खफीफ सी बोली। कहाँ है आपका घर? सर, मेरा घर नहीं, मामू का घर। वो संजीदा हो गई। बाबा के होते हुए सरकारी घर में रहते थे हम लोग, फिर मामू के घर आ गए। इस फिजूल जगह पर रहते हो आप? वो बेअख्तियार कह गए। जी सर, क्या आपने देखा है? उसने कहा तो वो गड़बड़ा गए।
नहीं, मेरा मतलब है ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ गाड़ी भी ना जा सके। मजबूरी है सर, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अगर वो भी ना होता तो कहाँ जाते हम। हाँ ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो। और फिर चंद ही दिन बाद उन्होंने उसके हाथ में चाबियाँ पकड़ा दीं। ये क्या है सर? सर नहीं अंकल। ओ, आदत हो गई है सर, अब छूटते छूटते ही छूटेगी ना, उसने कहा और फिर सर कहने पर हंस दी। बहरहाल ये आपके घर की चाबियां हैं जो आपको कंपनी की तरफ से अलॉट हुआ है। अंकल, अगर ये घर कंपनी की तरफ से होता तो ये चाबियां मुझे अरसल साहब देते। उसके लहजे में थोड़ी सी बेबसी और कुछ तशकर था। कम ऑन स्वीट गर्ल, इतना डिसहार्ट मत रहा करो। अंकल, मैं आपकी किन किन नवाजिसात का शुक्रिया अदा करूं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। नो, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर, बल्कि ये तुम्हारा हक है, उन्होंने कहा तो वो उन्हें देखने लगी। बस बेटा, आप मेरे लिए दुआ किया करो कि खुदा मुझे पछतावों के भंवर से निकाल दे। अंकल, आप मुझे बेटी भी कहते हैं और अपने दिल का बोझ भी हल्का नहीं करते। अंकल, आज कह ही दें, हो सकता है इस तरह आप कुछ पुरसुकून हो जाएं। कहूँगा बेटा, वक्त आने पर अपनी तमाम कोताहियों का इकरार करूँगा, लेकिन अभी तो मुझे इन ज़्यादतियों का कफ़ारा अदा करना है। उन्होंने कुर्सी की पुश्त से सर टिका दिया तो वो चुपचाप कमरे से निकल आई। फर्नीचर और आलाइश चीज़ों से आरास्ता व पेरास्ता ये घर नाइमा और जैन को बहुत पसंद आया था, और वो अपनी खुशी का इजहार नारों और मुख्तलिफ प्लानिंग्स बनाकर कर रहे थे। बच्चों को खुश देखकर अम्मा भी खुश थीं और उन सब को खुश देकर वो भी खुश हो गई। उसे लगा जैसे तमाम फ़िक्रें ख़त्म हो गई हैं। सारा स्टाफ घर मिलने की खुशी में उससे ट्रीट मांग रहा था और वो घर में ही पार्टी अरेंज करना चाहती थी, लेकिन मंसूर साहब ने मसरूफ़ियत का बहाना करके आने से इनकार कर दिया था और अरसल से वो कोई तवक्को नहीं रख सकती थी। लिहाजा दफ्तर में ये लंच ब्रेक टाइम में छोटी सी पार्टी का इंतज़ाम कर लिया जिसमें मंसूर साहब भी शरीक हो सकते थे। इस वक्त वो सब लोग कॉमन रूम में बैठे चाय से लुत्फ़ अंदोज हो रहे थे और साथ साथ खुशगप्पियाँ भी जारी थीं। मंसूर साहब तो खाना खाते ही चले गए थे और अरसल भी उनके साथ ही उठ गया था। सड़ेल, वो दिल ही दिल में कह गई, लेकिन तानिया बोल उठी, भला इन जनाब को मक्खियाँ मारना है ऑफिस में बैठकर? लो भाई, अफसराना रौब तो जमाना ही होगा ना। अगर हम में मिल बैठे तो पता कैसे चलेगा कि बॉस कौन है? सबकी राय मुख्तलिफ थी, लेकिन उसके लब खामोश थे। बीबी जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। ये रहमत था उस दफ्तर का चपरासी जिससे वो हमेशा खुश दिली से उसका और उसकी बीवी बच्चों का हाल चाल पूछती थी और अक्सर औकात हस्ब तौफीक माली मदद भी कर दिया करती थी। रहमत बेहद सादा दिल और शरीफ इंसान था, इसलिए वो उसकी कदर करती थी और वो भी उसका बेहद एहतराम करता था। ये क्या बात हुई रहमत, तुम यहाँ सब लड़कियों के नाम लेते हो, तानिया बाजी, फरिया बाजी, राहिला बाजी और तनवीना को सिर्फ बीबी जी? ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी बीबी को पुकार रहे हो। ओ जी, बात यह है तानिया बाजी के बीबी जी का नाम मुझे बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए सिर्फ बीबी जी कह लेता हूँ, उसने कदरे शर्माए हुए लहजे में जवाब दिया तो उसके अंदाज पर सब लोग हंस दिए। अरे रहमत भाई, अगर आपको तनवीना कहना मुश्किल लगता है तो आप मुझे वीना कह लिया करें, ये तो आसान है ना आपके लिए। वीना बीबी, हाँ जी ये ठीक है, वो ज़ेर लब दोहरा कर बोल उठा। आहा, काश कि मैं भी एक चपरासी होता। ये रईस साहब ने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए सबकी तवज्जो अपनी तरफ करवाई थी। मोहतरम, इसमें इस कदर परेशानी की क्या बात है, हम अभी आपकी सिफारिश कर देते हैं। तनवीर ने उनके कंधे पर हाथ मारकर कहा तो उनके बुरा सा मुंह बनाने पर जोरदार कहकहों से कमरा गूंज उठा था। वीना जी, इस कदर बेतकल्लुफ़ी से पुकारने पर उसने जाते जाते पलट कर देखा। इस वक्त सब लोग लंच के लिए जा चुके थे और वो भी इसी गरज से निकली थी कि रईस अहमद ने अपनी कुर्सी से उठते हुए उसे पुकार लिया।
तो वो बड़ी बुर्दबारी से एक एक कदम जमाती हुई उनके सामने आ खड़ी हुई। अगर आज आप लंच मेरे साथ करें तो मुझे खुशी होगी। उनके लहजे में लजाहत थी। रईस अहमद साहब, अगर मैं आपकी फ़िज़ूल किस्म की बातों को हंसकर टाल देती हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि मैंने आपको इस कदर बेतकल्लुफ़ी की इजाज़त दी है। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देती बोल रही थी। आइंदा मुझसे बात करने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि आप क्या कहने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? वो कह रही थी जबकि रईस अहमद का रंग उसके पीछे कहीं और देखते हुए सफ़ेद पड़ चुका था। वो अपनी बात कहकर मुड़ी तो उससे थोड़े ही फासले पर खड़ा अरसल उन्हें ही देख रहा था। वो एक नज़र उस पर डालकर उसके करीब से निकलती चली गई। उसने उसे जाते हुए देखा और फिर चंद कदम बढ़ा कर उनके करीब आ गया। क्यों रईस साहब, ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। सर, दफ्तर, उन्होंने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। जी हाँ, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये दफ्तर है, कोई क्लब नहीं कि जहाँ आप लड़कियों को खाने की दावतें दें। यहाँ हर लेडी वर्कर की इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। क्या ख्याल है? मैं गलत तो नहीं कह रहा? नो सर, उन्होंने झुके सर से जवाब दिया। ओके, आइंदा ऐसी हरकत न कीजिएगा वरना। ये कहते हुए अरसल भी बाहर निकल गया। वीना, ये रईस अहमद कौन है? वो फाइलें खोले बैठी थी कि अम्मा भी उसके करीब आन बैठी। हमारे कॉलीग हैं। पहले तो उसने सरसरी सा जवाब दिया, फिर चौंक कर सर उठाया। क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं? कैसे जानती हैं आप उन्हें? बेटा, आज उसकी वालिदा आई थी। उसकी वालिदा? पर वो क्यों? वो हैरानगी से पूछने लगी। तुम्हारा रिश्ता लेकर। क्या? वो हैरत से चीखी और फिर हंसी तो हंसती ही चली गई। उफ़ अल्लाह, बेवकूफ़ कहीं का, इसमें इतना हंसने की क्या बात है? अम्मा को उसका हंसना बहुत बुरा लगा। अम्मा, आप नहीं जानती वो किस कदर अजीब है। शक्ल से तो बिल्कुल जोकर लगता है। अगर उसमें कोई खूबी है तो सिर्फ़ ये कि बहुत मेहनती है, बहुत सीधा है। अम्मा, बेटा, किसी की सादगी पर इस तरह नहीं हंसते। अम्मा, सादगी पर नहीं, बेवकूफ़ी पर तो हंसते हैं ना। उसने कैसे सोच लिया कि मैं उससे शादी करूँगी? बेचारे पर बड़ा बोझ है, बाप नहीं है, इसलिए 4 बहनों का फ़र्ज उसे ही अदा करना है। हम ही जैसे सादा और गरीब से लोग हैं। मुझे तो उसकी माँ की सादगी बहुत भाई है, इसलिए तो तुमसे पूछा था। अम्मा, आप भी बस, सारे जहाँ का दर्द तो आपके सीने में है, लेकिन रईस अहमद मेरी मंजिल नहीं है। अम्मा, एक रईस अहमद ही नहीं, हमारे मुआशरे में आपको बहुत से घराने ऐसे मिल जाएंगे जिनका यही अलमिया है। अब मैं हर किसी से शादी तो नहीं कर सकती ना। तो तेरी पसंद क्या है? मेरी पसंद? अम्मा, अभी मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं किसी को पसंद करूं। और आप इस बेवकूफ़ की वकालत इसलिए कर रही हैं कि आपने उसे देखा नहीं है, और देखें तो मुझे यकीन है कि यही कहेंगी कि ये मेरी बेटी के काबिल नहीं है। उसके लज़े में न जाने क्या था कि अम्मा खामोश हो गईं। ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी। वो गहरी सांस लेते हुए उठ गईं। और फिर दफ्तर में जिसने भी सुना वो हंसे बगैर न रह सका कि सीधा साधा रईस अहमद ऐसा भी कर सकता है। मर्द हजरात ने तो बराह रास्त उन्हें मजाक का निशाना बनाया था। मिस तनवीना, रईस अहमद ने उसकी टेबल के पास आकर पुकारा तो उसने सर उठाया। मिस तनवीना, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी चाहतों का यूं सरे बाजार तमाशा लगाएंगी। उन्होंने कहा तो उसका रंग फीका पड़ गया। वो फिर गोया हुआ। मैंने वाकई आपसे मोहब्बत की थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो हम सोचते हैं अगला भी वही सोचे। अगर आपको मेरी रफ़ाकत कबूल न थी तो इस तरह मेरा मजाक न बनवाती। मैंने शायद वाकई ज़मीन में खड़े होकर आसमान पर चमकने वाले सितारे को दामन में भरने की कोशिश की थी। तनवीना, खुदा करे आपको भी कभी किसी से इतनी शदीद मोहब्बत हो जाए कि उसके बिना ज़िंदगी अजाब लगने लगे, लेकिन मैं ये बद्दुआ कभी नहीं दूंगा
کہ آپ کو اس کا ساتھ نہ ملے۔ میری ہمیشہ یہی دعا ہوگی کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور زندگی کی تمام خوشیاں آپ کو ملیں۔ وہ گہری سانس لینے کے لیے رکے جبکہ وہ ابھی تک دم سادھے بیٹھی تھی۔ یہ میرا استعفیٰ ہے، اسے ارسل صاحب تک پہنچا دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ اس نے ایک بند لفافہ ٹیبل پر رکھا اور تیزی سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے اور بے دھیانی میں اندر آتے ارسل سے ٹکرا گیا۔ سوری سر، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے تانیہ سے پوچھا، جو اس کے ٹکرانے کی وجہ سے اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی، اور جواب میں اس نے تمام صورتحال اس کے گوش گزار کر دی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بالکل خاموش اور ساکت بیٹھی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رئیس احمد اس حد تک گزر جائے گا۔ بیچارے کا باپ نہیں ہے، 4 بہنوں کا بوجھ ہے اس کے کندھوں پر۔ اماں کی آواز دور سے آتی سنائی دی، اور اب وہ صرف اس کی وجہ سے اچھی بھلی جاب چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کا کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہا۔ بیگ اٹھایا اور خاموشی سے آفس سے باہر آ گئی، اور پھر کئی دنوں تک ملول اور خاموش رہی۔ یار، لگتا ہے رئیس احمد کے جانے کے بعد تمہیں اس کی محبت کا احساس ہوا ہے، اور اب خود بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہو۔ تانیہ نے اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ خاموش نظروں سے اسے تکنے لگی۔ تمہاری اس خاموشی کو اپنی بات کی تصدیق سمجھوں میں؟ پتہ نہیں تانیہ، ایک عجیب سے احساس جرم میں گھری ہوں میں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گزر جائے گا کہ صرف میری وجہ سے جاب چھوڑ دے گا۔ اب اس کی بہنوں کا کیا بنے گا؟ تانیہ، اس کی ماں تو یقیناً مجھے بد دعا دے رہی ہوگی۔ میں نے واقعی اس کی بہت انسلٹ کی ہے۔ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں اسے اس طرح بے عزت کروں۔ بے عزت تم نے کیا یا خود اس نے اپنی بے عزتی کا سامان کیا؟ ہر انسان کو اپنا دامن دیکھ کر ہاتھ پھیلانے چاہیے، کہاں تم اور کہاں وہ۔ نہیں تانیہ، میں کوئی بہت مافوق الفطرت چیز نہیں ہوں، بس مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ مجھے اس طرح اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ میں نے اسے ہرٹ کیا تو دوسروں کو بھی موقع مل گیا اس پر ہوٹنگ کرنے کا۔ تو کیا اب تم اس الو سے شادی کر لو گی؟ تانیہ کو واقعی اس پر غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، ایسا تو میں نہیں کر سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ کروں گی ضرور۔ اور پھر اس نے منصور صاحب سے بات کی کہ وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اور انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ کیا بہت غم ہے رئیس احمد کے چلے جانے کا؟ ارسل کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اس سے بڑے چوبتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، تو پھر یہاں کیوں سوگوار شکل بنا کر بیٹھی رہتی ہو؟ جاؤ پھر رچا لو شادی اس کے ساتھ۔ وہ ایک دم چڑ گیا۔ ارسل صاحب، میرا اور آپ کا تعلق صرف دفتری معاملات تک ہے۔ اپنے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کی میں کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتی، اس نے کہا اور وہاں سے اٹھ آئی۔ منصور صاحب نے بتایا تھا کہ اس کے علم میں لائے بغیر انہوں نے اپنے کسی جاننے والے کی فرم میں اسے جاب دلوا دی تھی، اور یہ خبر سنتے ہی وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ ان سب کی دن رات کی محنتوں کے نتیجے میں کمپنی دن بدن ترقی کی راہوں پر گامزن تھی۔ منصور صاحب، جو کہ پہلے اس کمپنی کے ورکرز کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس کو خود ڈیل کرتے تھے، اب وہ خود ان سب سے مشورہ کے طلبگار رہتے۔ وہ واقعی ان کی ذہانت کے معترف تھے، اور آج کل تو وہ ویسے بھی بیرون ملک کاروبار کو وسعت دینے کی پلاننگ کر رہے تھے، جس کے لیے انہیں ایک ہیلپر کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ارسل سے تنویر کا مطالبہ کیا۔ وہ تنویر کو بیرون ملک اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن ارسل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی ہماری کمپنی اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتی کہ اسٹاف کا کوئی بھی فرد غیر حاضر رہے۔
اپنے کام کو جتنا تنویر سمجھتا ہے کسی اور کو سمجھنے میں وقت لگے گا۔ میرے اسٹاف کا ہر فرد اپنے کھانے میں بالکل فٹ ہے، بڑے خود غرض ہو